Hello everyone, welcome to back to this channel, and we have another very special guest who again needs no introduction. Someone who is the talk of the town. In fact, not just the talk of the town, the talk of the country these days. The newest celeb in town, which is CA Anirudh Garg. I'm not sure, Anirudh, if the feeling of having the prefix against your name has sunk in yet, but I think to add the cherry to the cake, you've secured an All India rank two, which is a very important suffix and makes it the celebrity of the town. So first of all, Anirudh, one, thanks a lot for taking out the time. And number two, how's the feeling? How was the feeling when you saw the results? How has it been in the last 48 hours? Has it sunk in yet? Thank you so much, Nivesh, for the wishes. And honestly, when I saw the result, I had my father with me. He's also a chartered accountant, and I just first I thought I'll look at the merit list first, but then the wait was like too long. Since 11 a.m. in the morning we were waiting. So I saw my mark sheet first. I saw that I scored 452. I thought that rank तो आ जाएगा, कौन सा आएगा ये नहीं पता. So I opened the merit list and I saw at the end it was written 2. So it was like 1 2 minutes after the results were out. So first thought was ये गलत है. This is not true, considering because earlier the ranks used to come above 500. Like for Yes. your top 10 ranks, the marks were above 500. So I thought this is wrong. This cannot happen. I refreshed it, and then I asked my father to refresh it. Then I asked my friends to refresh it, and I think at least 5 6 people have refreshed it. And I got a call. It was an unknown number. I picked up the call. It was BV sir, and BV sir said, "Hi, it's Bhava sir." And मैं एक्चुअली में सोच रहा हूँ कौन भंवर सर बोल रहे हैं. तो एंड फिर वो कह रहे हैं कि भंवर बोल ना, कंग्रेचुलेशन आपका AR2 आया है. मैं उनसे, is it actually me? Is it actually this Anirudh Garg who you are referring to? कहते हैं हाँ हाँ आपका ही आया है, आपका ही आया है. सो ही आज की प्रेसिडेंट का कॉल आ गया, तो ऐसे कि अभी अभी नहीं आया है. तो आई वॉज वेटिंग फॉर प्रेसिडेंट्स कॉल बिकॉज इवन देन आई वॉज नॉट श्योर. सो आफ्टर 1 2 minutes एक और अननोन नंबर से कॉल आया. आई पिक्ड इट अप एंड दैट वाज ICI प्रेसिडेंट, एंड वो कह रहे हैं कंग्रेचुलेशन अनिरुद्ध, यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2. उसके बाद थोड़ा संकीर्ण हो रहा है फिर. तो पेरेंट्स इतने खुश हो चुके हैं, मेरे से ज़्यादा खुश हो चुके हैं. माई मदर स्टार्टेड क्राइंग एंड फादर वॉज सो हैप्पी कि मेरे को लग रहा था उनका दोबारा सीए हो गया. तो इट वॉज लाइक वेरी वेरी अनरियल ऑनेस्टली. एंड फॉर 24 hours टिल yesterday I was still feeling that नहीं अभी मेरा नहीं आया है रिजल्ट. दिस इज अ ड्रीम. But after like 24 hours, it's like now it has sinked in after like countless interviews, after like countless news reporter interviews. Like they have asked this question n number of times how it's feeling now. Uh, I know like this is Anirudh Garg and the AIR2 was me only. इतने इंटरव्यूज हो गए अनिरुद्ध, आई एम श्योर एट सम पॉइंट यू वुड हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड। क्या एक का एक सवाल पूछ रहे हो, सभी लोग स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं सच कितने घंटे पढ़ाएगी। में. एक ही मतलब पहला क्वेश्चन सबका ही होता था कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है, आपने क्या स्पेशल करा है, सीक्रेट सॉस क्या है, क्या करना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, कोई अगर सी इंटर में बचा तो वो क्या करे. एंड ऑनेस्टली आई गॉट दिस क्वेरी फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल बिकॉज वो नंबर पब्लिक हो गया था. तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, एन नंबर ऑफ फोन्स आ रहे हैं. सबका है कि आपने ऐसा क्या किया कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे पढ़ाई करी. ये आर्स वाला क्वेश्चन तो इतना रिपीटेड हो गया था कि मेरे को एक टाइम का तो लग रहा था मैंने करी नहीं थे भाई. मेरे को पेपर आ चुका था. मैं लीक करा पेपर, मैंने ही लीक करा पेपर. ठीक है, मैंने ही पेपर बनाया था. वो तो मैं दिखा नहीं सकता था कि 100 नंबर है, नहीं तो पता लग जाता सबको. इसलिए मैं थोड़े कम नंबर लेके आया हूँ. नो नो, वेरी इंटरेस्टिंग। आई नो एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप बोलते हो कि आपने 7 घंटे पढ़ाई करी है या 8 घंटे पढ़ाई करी है ना, लोग मानते ही नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आप बता नहीं रहे हो कि तो आपने 14 घंटे होगी पढ़ाई, आप झूठ बोल रहे हो। करेक्ट. बिकॉज if I talk about my study schedule, it was not fixed, honestly. I used to study 7 hours, at least 7 8 hours. Effective 7 8 hours. I don't know कितना होता था दिन में, because effectively you can study 7 8 hours, but after that it's like you're sitting but you're not grasping anything that much with that राइट, much efficiency. वेरी ट्रू। Because brain needs to like relax after like every स्टडी सेशन. एंड आई यूज टू टेक ब्रेक आफ्टर एवरी 1 hour बिकॉज मेरा तो हो जाता था 1 घंटे में कि भाई अब तो जा ही नहीं रहा कुछ. एंड स्पेसिफिकली आई यूज टू स्टडी ऑडिट ऑलमोस्ट एवरी डे. तो ऑडिट पढ़ने के बाद तो मेरे को ऑनेस्टली हो जाता था कि आज का ही हो गया मेरा, अब नहीं हो कर गया। पाऊंगा मैं और कुछ. मेरा क्या होता था पता है, मेरे को भी नहीं पता था कितना इफेक्टिव पढ़ रहा हूँ। तो एक दिन
मेरी मई में एग्जाम्स थी, तो दिसंबर में मैं एक दिन वॉच लेके बैठा. So every time I used to take a break, I used to pause and then I used to start the watch every time I used to sit back to study. Imagine करो दिन के एंड में कितने घंटे हुए होंगे. It was only 5.5 hours. अपन को लगता है कि अपन पूरा दिन बैठ के पढ़ रहे हाँ, हैं, बट करेक्ट। एक्चुअली इफ यू रिड्यूस द ब्रेक्स, इफ यू रिड्यूस द मोबाइल स्क्रोलिंग टाइम, इफ यू एक्चुअली सी द नेट टाइम दैट यू स्टडी, दैट इज एक्चुअली वे लेसर. बट अब मैं किसी को बोलूंगा 5.5 घंटे पढ़ाई करिए दिन की, कोई मानेगा नहीं, बोलेगा यार आप झूठ बोल रहे हो. तो समझाना बहुत डिफिकल्ट है. एक बात बताओ. सॉरी आई वही थिंक तो आई लॉस्ट बिकॉज, यू. हाँ जी, गो अहेड, गो अहेड. अभी अभी आ रहा है ना। यस यस यस, गो अहेड, गो अहेड. हाँ, तो मतलब ऑनेस्टली मैंने भी मतलब ऐसे तो नहीं गया मौसले के बैठा, नहीं तो काफ़ी बुरी हालत हो जाती बिकॉज मेरे को भी पता इतना नहीं होता। बट यूजुअली इट इट हैपन्स कि आप पढ़ भी रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। मतलब अगर आप फोन लेके नहीं भी बैठे हो ना, तो भी अगर आप बुक के आगे बैठे भी हो, आप कोई पेज पढ़ रहे हो, तो इवन देन इट फील्स लाइक यू आर स्टडिंग बट यू आर नॉट एक्चुअली टाइप स्टडिंग। हो वो उस टाइम जाओगे. आप करने की कोशिश कर रहे हो कि आप पढ़ाई फॉर करने की श्योर. कोशिश कर रहे हो। तो वो दैट इज समथिंग कि वो इफेक्टिव आवर्स इज मेन। आप कितने इफेक्टिव आवर दे पा रहे हो दिन में, दैट मैटर्स मोर कि आप कितना पढ़ रहे हो उससे। पढ़ने के लिए तो यार आप अगर 14 घंटे लगा भी लोगे उससे कुछ होगा नहीं। करेक्ट. आपका स्लीप ही खराब होगा, आपकी हेल्थ ही खराब होगी, ऑनेस्टली। बट अगर आप 7-8 आवर्स भी इफेक्टिवली पढ़ पा रहे हो ना, तो दैट वर्क्स वंडर। वो तो आपको कर देता है कवर एक दिन के लिए, बिकॉज द सिलेबस इज वास्ट, बट ऑनेस्टली इट इज मोर वास्ट देन इट इज डिफिकल्ट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट इज वास्ट। Yes. It is वास्टनेस ही है manageable, it मेन is चीज। doable, इट but इज you need to मैनेजेबल। plan well because it is very big. करेक्ट, करेक्ट। यू नीड टू बी लाइक कि मेरे को इतने रिवीजन करने हैं एंड मैं इतने घंटे इफेक्टिव पढ़ूंगा। ऑलवेज लुक फॉर इफेक्टिव आवर्स, क्योंकि जो बैठने वाले आवर्स होते हैं वो बैठने वाले आवर्स होते हैं, जो इफेक्टिव Very आवर्स true. होते हैं वही आपको पेपर में Very, काम very आएंगे true. लास्ट में। Very, very true. एक बात बताओ, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, एआर वन नहीं आने का दुख है क्या? ऑनेस्टली नहीं, ये बिकॉज होता है कि मैं द सिल्वर मेडलिस्ट इज ऑलवेज द अनहैप्पीएस्ट. गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ कोर्स वन है तो बहुत खुशी है, एंड ब्रोंज वाले को भी खुशी है. अरे 3 का 4 होता तो स्टारडम चले जाता, बट 2 वाला हमेशा अनहैप्पी होता है. व्हाट इज योर सिनेरियो? नहीं, ऑनेस्टली नहीं, बिकॉज मैं ऐसे फील करता हूँ ऑनेस्टली। मैं स्टार्टिंग से ऐसे एंड मैं बहुत बार सेकंड आया हूँ ऑनेस्टली स्कूल में भी। तो मेरे को पता है सेम. कि फर्स्ट भी अच्छा होता है, सेकंड भी अच्छा होता है। तो करेक्ट. आई हैव बीन एट सेकंड मैनी टाइम्स। मतलब 6-7 तक तो मेरे को याद है कि सेकंड ही होता था बहुत बार, फर्स्ट होता भी नहीं सेम. था। तो वो मेरे को कभी लगा नहीं। एंड ऑनेस्टली आई फील मोर सेटिस्फाइड विद माई वर्क कि ठीक है, रैंक आया है, बहुत अच्छी बात है। AIR 2 आया है, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग AIR आफ्टर आई सॉ माई मार्क्स। आई डिड नॉट ऑनेस्टली एक्सपेक्ट AIR 2। एंड ऑनेस्टली आई आई थिंक एंड आई बिलीव ये है भी कि इट्स अ बिग डील इन इटसेल्फ कि आपका AIR 2 आ रहा है, फॉर श्योर, rather than going एब्सोल्युटली. for रैंक आना AIR 1 इटसेल्फ इज की एक्चुअली, आया नहीं। क्लियर करना इटसेल्फ इज अ बिग डील. क्लियर फर्स्ट करना अटेम्प्ट में इटसेल्फ इज क्लियर अ करना बिग इज अ डील। बिगर डील. रैंक आना इज अ बिगर डील, एंड रैंक ऑफ आना। कोर्स 1 2 3 इज एंड रियली. ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट दीक्षा बहुत ज़्यादा, बिकॉज AIR 1 आया उनका, इंटर में भी आने, फाइनल में भी AIR 1 आया, बिकॉज उनका एफर्ट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। ऑनेस्टली आई थिंक माई सेल्फ ओनली, बिकॉज कंसिडरिंग उनके और मेरे नंबर का गैप भी देखोगे तो 30 नंबर का गैप है अराउंड। तो मेरे को तो एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। मैं उनका जब नंबर्स देखा, मैंने शी डिजर्व्स इट मोर देन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। सो ऑनेस्टली नेवर फेल्ट बैड। हाँ, ये लगा था कि AIR 2 आया तो मैं सोच रहा था कि 452 पे AIR 2 है तो AIR 1 के कितने कितने नंबर आए AIR 1 के। तो फिर जब मैंने उनका देखा तो मैंने बोला ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, शी डिजर्व्स इट बनता है. मोर देन एनीवन एल्स। No, but I'll tell you, I think in the longer run, by the way, rank really does matter for sure. The number of ranks starts mattering lesser and lesser. First job, maybe to some extent, because few companies who hire have a preference for single digit AIRs or AR 1 to 5. But generally, having a rank makes the cut. So I think the number, anyways, makes lesser this thing. But my question was, anyways, on a lighter note. अच्छा, एक और बात बताओ. मार्केट में ना ये रूमर चल रहा है कि AI 2 बिक गया नाउ. आई मीन इट इन अ फनी वे. सो आई टेल यू व्हाई. सो बेसिकली आपके आईडीटी के जो आपने इंटरव्यू दिया है, वो 2 फैकल्टीज को दिया है विदाउट नेमिंग द फैकल्टीज. सो इसका बैक स्टोरी क्या है? क्या AI 2 बिक गया है? इसका बैक स्टोरी क्या मैं आई विश ऑनेस्टली कि थोड़ा पैसा दे देते, है? तो बट ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑनेस्टली द थिंग इज कि आईडीटी, पता है, AFM के बाद माई फर्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट वाज AFM ओनली, एंड उसमें हाईएस्ट मार्क्स आया। तो सेकंड वाज आईडीटी। तो आईडीटी में आई वांटेड टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि मेरे 70 के ऊपर आने वाले हैं। आई ओके. वांटेड कि मैं कोई भी, मतलब जरा सा भी चांस ना लूँ कि 70 के ऊपर नहीं आएंगे। तो आई टुक क्लासेस फ्रॉम फैकल्टी 1। आई वोंट ऑल्सो नेम बिकॉज सबको पता ही है। ठीक है, तो आई टुक क्लासेस फ्रॉम वन फैकल्टी, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग क्लासेस इट वाज नॉट दैट कि आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि क्लासेस वाज नॉट परफेक्ट और समथिंग दैट।
आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर वन मोर नोट्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी 110% श्योर कि इसमें तो मैं मतलब आग ही लगा के आने वाला हूँ एडीटी के पेपर में। तो I took only books from the other faculty and I also referred their revision lectures as well. So it was not like कि मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ा दोनों फैकल्टी के मटेरियल से ही था। इट्स जस्ट दैट कि आई थिंक बोर हो जाते हैं लोग, उनको लगता है कि इंटरव्यू हम देख रहे हैं तो यार ये दो इंटरव्यू कैसे दे दिए इसने एक ही सब्जेक्ट के लिए। एंड आई People थिंक need a chance. They just need one topic to raise their they finger. need one chance and honestly I remember saying it in both faculties interview कि मैंने किससे पढ़ाई करी है एंड किससे बुक्स ली है और कहाँ से पढ़ा है। बट आई थिंक अगेन अगर हम पूरा 40 मिनट का वीडियो देखें तो 40 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है देखने के लिए। तो उन्होंने जस्ट देखा कि यार दो जगह से पढ़ रहा है, जस्ट थ्रो द कमेंट एंड लीव। अनिरुद्ध तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, अभी सबको बोल रहा है नहीं नहीं मैंने किसी फैकल्टी से लेक्चर नहीं लिया, मेरे को तो इंस्टीट्यूट ने पेपर दे दिया था करेक्ट एंड मेरे करेक्ट को तो करेक्ट 100 मार्क्स का आता था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया 100 का, वरना करेक्ट डाउट हो जाता करेक्ट। लोगों को। हाँ बहुत डाउट हो जाता है लोगों को, लोग बोलते हैं यार ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। ऐसे वालों ने मेरे को प्रेसिडेंट ने कॉल करके बोला कि यार अनिरुद्ध प्लीज हैंडल। Anirudh, I have one question. Given, and I know as a matter of fact, paper nahi phoota tha. That was on a lighter note. So you've got an AI too, and there has to be a reason behind this. ठीक है? Every anchor has a secret sauce, as people claim to have. So what is your working hypothesis on why are you intelligent? Honestly, I would say I'm not honestly intelligent because I have a bigger sister. She's doing a PhD right now. And honestly, since school, she used to always top. And I was some of like one of those person जो टॉप 10 में आ जाता था एंड सेवेंथ में तो मेरे को याद है कि सेवेंथ में तो आई थिंक मैं एक नंबर से पास भी हुआ हूँ मैथ्स में। Oh, तो मैं तो कभी भी आई नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आई न्यू कि मैं अगर 4 बार किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो आई अंडरस्टैंड इट एंड आई थिंक 4 बार पढ़ने के बाद किसी को भी समझ आ जाएगा। तो आई ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क एंड आई न्यू लाइक आई सॉ माई सिस्टर बीइंग लाइक एक दिन पहले पढ़ रही है पेपर से एंड नंबर लेके आ रही है और मैं 4 दिन पढ़ के भी उतने ही नंबर लेके आ रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली मेरा हमेशा से ही था कि भाई हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। भगवान ने दिमाग दिया बट भगवान ने दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं दिया कि एक बार पढ़ लिया याद हो गया। कंसीडरिंग एक ऑडिट सब्जेक्ट है फाइनल में और इंटर में भी, और ऑडिट से मेरे को इतना डर लगता है कि मेरे को अभी भी खराब सपने आते हैं उसके। एंड ऑडिट में एक मॉक में मेरे 40 नंबर भी आए हैं, पूरे 40 नंबर। तो इट वॉज नॉट लाइक कि मैं बहुत ही टॉपर था कि मैंने एक बार पढ़ लिया ऑडिट में बस अब तो भाई लिख दूंगा, मैं ही ऐसे बना रहा हूँ नया। तो मेरा तो हमेशा से यही मंत्र रहा है कि भाई इफ़ यू आर नॉट दैट शार्प यू जस्ट नीड टू शार्पन योर सेल्फ, तो आप खुद ही कर सकते हो वो। आपको हार्ड वर्क से ही करना पड़ेगा अपने आप। एंड आई यूज टू जस्ट ट्राई टू डू थिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा, अगर कोई 4 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 6 पढ़ लूंगा। बट मैं बस वो करता था कि 6 घंटे में पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं देख रहा, कुछ भी और नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे को पता है कि आई कैन वर्क वेल बट आई नीड टू पुट इन लिटिल बिट मोर एफर्ट। so basically ऐसा कोई सुपर पावर्स नहीं होते रैंकर्स के पास, नहीं at नहीं least नहीं what I अभी am आया नहीं thinking है। of is hard work can compensate for all those so called superpowers. हाँ अगर सुबह और है तो बहुत लेट हो गया, अब एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा मेरे को लगता है। So, एक बात बताओ, the journey up to exams is definitely a tough one for sure. Needless to say, tell us some backstory on how you survived this entire journey, with also some unknown facts about you, something that people don't know. Strategies तो हर किसी को पता है, and some funny incidents on anything that you can think of through your journey. सो एक तो फैक्ट ये भी है कि जो AIR 36 है उद्देश्य, वो मेरे फ्लैटमेट थे, तो हम दोनों साथ ही रह के पढ़े हैं जब हम पेपर्स के लिए पढ़ते थे। तो अगर इनको लग रहा होगा कि भाई दोनों AIR हैं तो पता नहीं कितना पढ़ाई होता होगा, तो ऐसा नहीं होता। हम तो भाई बहुत बार ऐसा होता था कि वी यूज टू सिट अराउंड 10 o'clock रात को डिनर करने एंड हम 2 बजे तक बातें ही मार रहे, फिर 2 बजे याद आ रहा है यार पढ़ना भी तो है, पेपर भी तो है। तो फिर उस टाइम हम जाएंगे, 15 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठने के बाद वो मेरे डोर पे नॉक करेगा, बोलेगा "यार, पढ़ रहा है?" "हाँ, नहीं भाई पढ़ तो नहीं रहा हूँ।" हम फिर आधा घंटा और खराब करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो यूजुअली यही होता था। एंड द जर्नी लाइक मेरी जर्नी ना बहुत नॉर्मल रही है ऑनेस्टली, मेरी जर्नी में कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा। बट आई वुड से कि सबको ना ये लगता है कि AIRs होते हैं या जो भी रैंकर्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। बट आई पर्सनली बिलीव कि इफ़ यू आर एंजॉइंग द जर्नी तो तुमको ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा आगे जाकर, बिकॉज Absolutely. बर्नआउट वो 6 महीने में तभी आता है जब यू आर फीलिंग इट लाइक अ स्टडी। आपको स्टडी लीव है, स्टडी लीव है। Absolutely. मैं तो पर्सनली इंजॉय करता था कि जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहा हूँ एक्सेप्ट ऑडिट अगेन एक्सेप्ट ऑडिट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो
आई यूज टू एंजॉय इट बहुत ज्यादा, मतलब डायरेक्ट सर्च पढ़ते हुए कुछ भी चैट जीपीटी पे डाल दिया, वो उल्ट पटांग आंसर देगा, फिर मैं उसको लिखूंगा ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी तो फ्लॉ होता है, फिर वो मेरे को दोबारा आंसर देगा कि सॉरी आई डिड दिस रॉन्ग। तो मैं तो मतलब आई यूज टू एंजॉय इट अ लॉट। एंड अगर मैं अननोन फैक्ट्स बोलूँ तो ऑनेस्टली सबको बहुत मतलब ये एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि भाई एआईआर्स हैं, एंड बहुत वो भी रहते हैं, क्या कहते हैं कि इनके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस और होती है, ये हर फील्ड में अच्छे होते हैं, तो मैं नहीं हूँ भाई। मैं पढ़ाई में ही कर पाया हूँ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली इन माई लाइफ जो इतना बड़ा मेरे को अचीवमेंट मिला। एंड इसके अलावा ऑनेस्टली आई डिड ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड जैसे मैंने गिटार भी शुरू करा था, बट अभी वो धूल खा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं हो पा रहा है उसका, उसका एक बार भी तार तक नहीं टूटा है अभी तक। तो उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं देखने को मिला। एंड इसके अलावा ऑनेस्टली आई हैव बीन लाइक स्टूडियस इन माई स्कूल लाइफ, बट मैं फन भी जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तब मैंने करा। लाइक आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम हंसराज कॉलेज, तो उसमें आई वॉज अ मेंबर ऑफ एफआईसी फॉर 2 years, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, एंड आई डिड हेड द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट सेकंड ईयर में। तो आई गेव माई इंटर सेपरेटली बिकॉज मेरे को रेगुलर कॉलेज एंजॉय करना था। तो उस टाइम तो भाई कर रहे हैं, किसी को भी कॉल लगा रहे हैं, बोल रहे हैं सर आप स्पॉन्सरशिप दोगे, 5,000 की स्पॉन्सरशिप दोगे, 6,000 की स्पॉन्सरशिप दोगे। तो आई यूज टू एंजॉय, मतलब जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आई यूज टू वैल्यू, लाइक क्या मेरे को अभी लगता है कि मेरे को आगे जाके अच्छा लगेगा, कि कोई गिल्ट नहीं होगा, तो वो आई यूज टू डू ऑलवेज। ऐसा नहीं रहता था कि मैं बैठा ही हूँ, घर पे बैठा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ। वो 6 महीने का पीरियड आई वुड से यस, आप घर पे बैठे हो, आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैम दैट आई यूज टू डू लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे भी मेरा इंटरेस्ट बैठ रहा है, चाहे वो पूरी हॉबी नहीं रही है, जस्ट लाइक माई गिटार। आई थिंक इट विल कॉल मी वेरी सून कि आ जा भाई अब तो बजा ले, इसको क्यों नहीं आता, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया था। बट इवन देन आई वुड से कि डोंट टेक इट लाइक वेरी सीरियस कि भाई रैंकर आ रहा है तो उन्होंने कुछ ही नहीं करा होगा जिंदगी में। आई वुड से कि आप थोड़ा लाइफ को उस एंगल से भी देखो कि वो लाइफ भी है आपकी, बिकॉज अगर आप कोई एक्सपीरियंस नहीं लोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा कम्बरसम होगा पढ़ाई करना। अगर एब्सोल्युटली। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो आपको फील होगा कि हाँ भाई मैंने 4 दिन पार्टी कर ली है, अब 6 महीने बचे हैं, अब 6 महीने पढ़ाई पढ़ करनी है। लेते हैं। No, I fully agree. I think what genuinely makes CA tough is mainly the vastness of the course and the need for you to plan well. And इस चीज के लिए to remain sane, to have a normal mindset, I think वो fun करना, मजा करना भी जरूरी है. And honestly, I want to ask you one more question, which I had not thought I'll ask, but seeing that you have a great sense of humor, I want to ask you this question. It seems like you've had your bit of fun over the last 5 years. Um, having your bit of fun or having that good sense of humor, masti mazak, chahe jo bhi partying this that, has it helped you manage your nervousness, anxiety, stress, and hence eventually has it helped you study better? Yeah, I would agree honestly because when you have fun, like you socialize honestly. Socializing is very important for your mental health because you meet people. And Udeshya I met in FIC. Hmm. So like if I had not been a member of FIC तो शायद मेरी उद्देश्य से कभी बात ही ना होती। तो Hmm. दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज Correct. अगर आपको पता होगा ना, इफ यू गो पुट योरसेल्फ एनीवेयर, सो यू विल फील लेस नर्वस ऑनेस्टली। Correct. And nervousness is very, 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 very dangerous for any exam aspirant because if Very you're important. feeling nervous, you're not studying honestly. And अगर आप especially for नर्वसनेस में पढ़ CA, भी रहे हो, स्पेशली फॉर सी, इफ यू आर स्टडिंग इन नर्वसनेस तो वो कुछ हो नहीं पा रहा है आपसे। कुछ नहीं होएगा। यू जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर बुक्स, यू जस्ट ट्राइंग टू आई थिंक मेमोराइज द पेजेस के नंबर जो नीचे आ रहे हैं, बिकॉज पेजेस पे क्या लिखा है वो किसी को याद नहीं होने वाला है याद उस नहीं टाइम। होगा। करेक्ट। तो मैं तो आई वुड ऑनेस्टली, अगर मेरे को अभी 1-2 दिन जिनका भी कॉल आया, बिकॉज आई एक्चुअली गॉट अ कॉल फ्रॉम अ पेरेंट, वो बोल रहे थे कि हमारा बच्चे का भी 11th शुरू होने वाला है, सो शुड वी पुट हिम इन स्कूल और सीधा फाउंडेशन से स्टार्ट कर दें। ओ माय तो मैं गॉड। तो उनको भी कह रहा था कि यू शुड पुट हिम इन स्कूल, उसको स्कूल तो खत्म करने दो ऑफ एटलीस्ट, कोर्स। एंड ऑफ कोर्स। उसके बाद उसको कॉलेज भी करना चाहिए। एंड आई करेक्ट। ऑनेस्टली से कि आपको रेगुलर कॉलेज से करना चाहिए इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्युटली। बिकॉज यू मीट पीपल, यू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, एंड यू ऑनेस्टली ग्रो एज अ पर्सन। अगर हम्म। आप प्रेशर झेलना, अगर लाइफ में प्रेशर झेलना सीख जाओगे ना, तो एग्जाम का प्रेशर कभी कभार बहुत कम लगता है कि यार इतनी बड़ी चीज हो गई थी, वो तो हैंडल कर ली थी, ये तो पेपर है, इसमें तो पढ़ना है, ये तो घर में बैठ के पढ़ना है, इसमें इतना डरने वाली बात क्या आ रही है। करेक्ट। सो दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज यू हैव वन ब्रेन, एंड अगर आप उसको एक तरीके से वायर कर दोगे कि हाँ भाई यू कैन हैंडल प्रेशर इन एनी सिचुएशन, तो वो आपका पढ़ाई में भी आराम से आप हैंडल कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली। ऑनेस्टली ऑनेस्टली आई वुड से आउट ऑफ ऑल द प्रेशर्स इन द वर्ल्ड पढ़ाई सबसे आसान प्रेशर, बिकॉज आई आपको पढ़ना है एक जगह पर। I'll say two things, and I fully agree. By the way, very well put. Two things. One is, मेरे को ये लगता है कि यार जब हम लोग लेट्स से नर्सरी में थे, नर्सरी जूनियर केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड वॉट एवर, तब क्या हम लोग को ABCD लिखना मुश्किल लगता था?
एब्सोल्युटली यस, इफ यू गो एंड आस्क अ 3 ईयर ओल्ड 4 ईयर ओल्ड, उसको भी एग्जाम का प्रेशर है, उसको भी एबीसीडी लिखना नहीं आता है। आज की डेट पे आपको लगेगा अरे यार ये तो कितनी सिंपल चीज है, ये क्यों प्रेशर ले रहा है। सो एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू फेल्ट दैट दैट एग्जाम इज टफ, बट एज यू मूव हम्म, अहेड यू रियलाइज दैट द प्रीवियस एग्जाम वाज easier. तो ये एग्जाम इवेंचुअली इट इज अ 3 hour एग्जाम एंड यू हैव टू ट्रीट इट एज सच. Obviously it is one of the toughest courses in the world and there is no argument to that, but the moment you take it on your head आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और पढ़ाई होगी नहीं. उससे बेटर करेक्ट सोचो ना, करेक्ट। अरे एग्जाम ही तो है यार, इतनी एग्जाम दिए लाइफ में, 4 और सही, 6 और सही. And I know, honestly ऐसे कि when you compare it with other competitive exam like यूपीएससी वगैरह, तो we are honestly blessed कि हमारे पास एक ही मटेरियल है। वी नो कि 4 बुक्स हैं, तो 4 बुक्स में से इसमें ही से आ ही रहा है पूछना. पेपर, वही है। करेक्ट. करेक्ट. यूपीएससी, इफ यू कंसिडर यूपीएससी, क्योंकि बहुत बहुत डिस्कशन होता है इस चीज़ पे भी कि सीए वर्सेस यूपीएससी कौन डिफिकल्ट है कौन मुश्किल है। एवरी एग्जाम इज डिफिकल्ट, बट ऑनेस्टली वी एज अ सीए स्टूडेंट्स वी शुड बी फीलिंग ब्लेस्ड कि हमारा मटेरियल तो पता है हमें। तो यू शुड लाइक अप्रिशिएट आईसीआई कि उन्होंने मटेरियल तो बता रखा है, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ कि अकाउंट्स में कंसोलिडेशन करना है, आप खुद देख लो कंसोलिडेशन कहाँ से पढ़ना है। Very true. Very true. And the second thing that I was mentioning is, like you rightly said, कि पढ़ना सबसे easy है दुनिया के सारे प्रेशर्स में से. I'll just say one thing that, and especially for all those who've become CAs now, that when the life of exams ends, the exam of life begins. You will realize करेक्ट, that the exam एब्सोल्युटली of life is so much more tougher than the life of exam. करेक्ट। Uh, and with that, actually moving on to my last question, Anirudh, what is next in your exam of life? What next? Honestly, Job, further studies, what are you thinking? like this question is for me also because I'm also considering a lot of things. Earlier, I had a plan कि I would probably join my father's firm because वो भी chartered accountant है and he has a firm. But since now AIR आ गया, तो I think I'll have more on my plate Very to fair. choose from. And I think I should be appreciative of that because the opportunity मिल 100%. रही है. Yes. And I honestly am not closing any Hmm. doors right now. Hmm. I'll consider everything I can right now, and will probably choose what I would think would suit me for the coming years. And I honestly, मैं उन लोगों में से जो 5 ईयर प्लान नहीं बनाता। आई यूज टू मेक जस्ट 1 ईयर प्लान कि हाँ 1 साल का प्लान बना रहे हैं एंड लेट्स सी कि लाइफ उस 1 साल में कहाँ जाने वाली, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि 5 ईयर प्लान अगर इतनी बड़ी गवर्नमेंट नहीं कर पाती ठीक से इम्प्लीमेंट, तो हम तो क्या कर पाएंगे, हम तो एक एक ही वेरिएबल हैं, तो वो वेरिएबल कभी भी कैसे भी चेंज हो सकता है। तो इट्स बेटर टू प्लान फॉर अ शॉर्ट टर्म फॉर मी ऑनेस्टली, कि एक ईयर देखो कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हो, एंड उस 1 साल जब वो खत्म होने वाला है ट्राई टू प्लान द नेक्स्ट ईयर। उससे आपको प्रेशर भी नहीं होता कि यार जब ये प्लान खत्म होगा 5 साल निकल जाएंगे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो भी नहीं होगा एटलीस्ट, कि अगर 1 साल निकलेगा तो मैं 24 का होऊंगा, अगर मैं कुछ गलत डिसीजन ले भी होगा तो 24 है, बहुत ज्यादा नहीं है। Absolutely. आई बिलीव बहुत ज्यादा नहीं है। Absolutely not. Absolutely not. अभी तो क्वार्टर लाइफ से भी दूर हो. अज्यूमिंग एंड वी हैव लाइक 100 ईयर एक्सपेक्टेंसी चलो ठीक बट है, या 1/3 लाइफ से भी दूर हो, लेट मी पुट इट दैट. 1/3 लाइफ इज वन गुड थर्ड लाइफ से भी दूर. कंसिडरिंग आई लिव इन दिल्ली दैट इज डिबेटेबल, वो सोच लो यार. दैट इज डिबेटेबल नाउ वो जॉब लेने के लिए एक और क्राइटेरिया हो गया. नहीं, बट आई थिंक one piece of unsolicited advice to you and to all the fresher chartered accountants. I think the first job is absolutely important. Your first job in life is absolutely important, because in a way you are choosing a career path. It's not about the job, it's not about the company, it's about choosing a field, it's about choosing a career path. And like I'll give you an example. When I took Bain and Co, right, management consulting is not something I had worked on during my articleship. So kahin na kahin you would also not know what that field is about. So until you make that choice, or for making that choice, speak to as many people as possible across those fields and make an informed choice. Do not go for any particular choice just because your seniors would have chosen that, or your seniors are suggesting that to you. You should decide that for yourself by speaking to a number of people. That is just that last piece of unsolicited advice. Yeah, But having said that, that's Anirudh, this perfectly. was superb discussion, and I love your sense of humor. I hope you But stay happy and joyful as you have been, even after you take up a job. That's tough, by the way. Not as easy as having that while studying, but I'm sure you will remain that way. And heartiest congratulations once again on behalf of all the viewers as well, and all the very best for what lies ahead. thank you so much. Thank you so much to our viewers. Do not forget to share this with all the C aspirants out there, and share the importance of having a good sense of humor, but more importantly, to have a normal life without a lot of stress. And do not forget to subscribe as well. Thank you so much. See you all.